Assalamualaikum. I hope you're doing great. Welcome to the seventh lesson of our module number 3. And in this lesson, we are going to learn past perfect continuous tense. Do you ever wonder why do we say she had been crying and we don't say she cried? Because she had been cried में हमें एक prolonged effort show होता है, हमें पता चलता है. For example, अगर she had been crying है तो वो फॉर से कल से रो रही है, लाइक पास्ट में इवेंट शुरू हुआ था एंड प्रेजेंट में इवेंट चल रहा है. तो इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट देयर आर विजिबल टीयर्स, द आईज आर रेड एंड इमोशनल स्टेट चल रही है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक. ठीक है. नाउ इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है हैड बिन प्लस वर्ब लेकिन आईएनजी फॉर्म वाला. अब ये सब्जेक्ट हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, और उसके साथ हमने हैड बिन ऐड किया एंड वी हैव एडेड अ वर्ब इज़ वेट, और वेट हमने आईएनजी के साथ लगाया है. अच्छा, इसमें भी हम कॉन्ट्रैक्शंस ऐड करेंगे, जैसे आई हैड बीन मीन्स आई हैड बीन, यू हैड बिन, he had been, she had been, we had been and they had been. इसका अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें हम सिंपली नॉट ऐड कर लेंगे, जैसे हैड नॉट बिन, और वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में ही होगा एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा. क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हम देखें तो हैड जो है वो पहले आएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हम बिन लिखेंगे एंड देन द वर्ब विल कम ऑफ आईएनजी फॉर्म विद अ क्वेश्चन मार्क. ओके, यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन नोट ये है कि हैड बिन जो है वो ऑफन रिड्यूस हो जाता है हैड बिन. ठीक है, इसमें हम उसको फास्ट स्पीच में ऐसे नोट करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. फर्स्ट यूज़ है लॉन्ग एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल, इट एक्सप्लेन्स टायर्डनेस, डर्टीनेस, वेटनेस, etc. like these examples in the past. Everything is in the past. Some of the examples are, he was exhausted when he arrived because he had been walking for 3 hours. अब इसमें of course tired face है, it's the visible result of duration. He was exhausted when he arrived, ये past वाला sentence है कि वो exhausted था जब वो आया था. क्यों था? Because he had been walking for 3 hours. Because अब ये जो है डीप पास्ट में भी इवेंट जा रहा है, जैसे हमने लास्ट लेसन में सीखा था. तो एक पास्ट सिंपल का है और दूसरा डीप पास्ट का है, और इसमें जो है डिफरेंस है वो भी हम सीखेंगे आगे चल के. सेकेंड एग्जाम्पल इज़, हर हैंड्स वर डर्टी बिकॉज शी हैड बिन प्लांटिंग फ्लावर्स ऑल मॉर्निंग. उसके हैंड्स डर्टी थे. क्यों थे? क्योंकि उससे पहले शी वॉज फ्लावरिंग, शी वॉज प्लांटिंग फ्लावर्स ऑल द मॉर्निंग उसका वो एक्शन कंटिन्यूड रहा था. Third example is, the roads were flooded. It had been raining heavily for days. Same structure, same tone. Now let's come to the second use of past perfect continuous, which is something continued for a long time up to a specific past moment. कोई भी ऐसा event, कोई भी ऐसा action जो एक specific past moment तक वो रहा था, like present में वो नहीं हो रहा. Examples are, by the time the doctor came, the patient had been waiting for over 2 hours. Now, this sentence is obviously stressing long wait before arrival. Then everything is happening in the past, okay? By the time the doctor came, patient जो है already उससे पहले 2 hours का wait कर चुके थे. Second example is, we had been living in the old house for 10 years when the flood destroyed it. Again, it describes the duration of life situation before a sudden change. तो वो sudden change भी past में ही आया. And living वाला जो part है इसमें, that is for the continuous part. Third example is, she had been practicing the dance routine since dawn when the performance finally started. अब इसमें ये finally started past simple and the first phrase is for deep past, means past perfect. Let's look at the use number 3, which is temporary phase or repeated activity leading up to a past point. Again, इसमें हम temporary phases describe करेंगे. Let's look at the examples. First one is,
They had been arguing a lot recently before they decided to take a break. अब इस सिचुएशन में एक टेम्पररी फेज़ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे ब्रेक वर्ड ऐड किया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ओके इट्स अ टेम्पररी फेज़. सेकेंड इज आई हैड बिन ट्राइंग टू फिक्स द बाइक फॉर वीक्स बिफोर आई फाइनली गेव अप. मीन्स राइट नाउ वो बाइक पे काम नहीं कर रहा, लेकिन उसने उससे पहले हफ्ते लगा दिए टू फिक्स हिज बाइक. ओके, अगेन इसमें रिपीटेड एफर्ट आ रहा है एंड ही हैज़ गिवन अप. थर्ड एग्जाम्पल इज द कंपनी हैड बिन लूजिंग मनी फॉर मंथ्स व्हेन इट वेंट बैंकरप्ट. अगेन सेम स्ट्रक्चर है, सेम फ्लो है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हाईलाइट हो रहा है. This was the end of the part 1. I will see you in the next part. Make sure you watch that. We will be understanding the comparison of tenses, and we will be looking at more examples and a fun activity for you in the end of the lesson. So don't miss out. Till then, bye.